हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स वर्सेस नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। एज वी ऑल नो, बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे लैंडर्स और बोरोअर्स की नीड्स मीट होती हैं। बैंक्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स और उन्हें कई बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक; ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स; ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, urban banks, state banks, regional rural banks, foreign banks, etc. Likewise, on the basis of the presence of bank in the second schedule of RBI Act 1934, banks are classified into scheduled banks and non-scheduled banks. In simple words, scheduled banks वो banks होते हैं जो RBI Act 1934 के second schedule में present हैं और जो इस list में नहीं है, they are called non-scheduled banks. As simple as that. Scheduled banks are further classified into commercial scheduled banks and cooperative scheduled banks. Commercial scheduled banks are of 5 types. First one is SBI and its associates. Second is nationalized banks. ये दोनों banks को public sector banks की category में रखा गया है. Third is regional rural banks. Fourth is foreign banks and the fifth one is private sector banks. Cooperative scheduled banks are further classified into urban cooperative scheduled banks and state cooperative scheduled banks. वहीं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू स्टेट कोऑपरेटिव नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो कि 11 होते हैं एंड अर्बन कोऑपरेटिव नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो कि 1500 हैं। इसके अलावा 4 लोकल एरिया नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स भी हैं। ये सिर्फ 4 हैं, इसलिए हमें इनका नाम, लोकेशन पता होनी चाहिए। द नेम्स आर, फर्स्ट वन इज कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड इन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। सेकेंड, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड इन फगवाड़ा, पंजाब। Third is Krishna Bhim Samruddhi Local Area Bank Limited, Mehboob Nagar, Andhra Pradesh. And the fourth one is Subhadra Local Area Bank Limited in Kolhapur, Maharashtra. So this is the classification of scheduled and non-scheduled banks. Going further, let us know the meaning of scheduled banks and non-scheduled banks thoroughly and the differences between them. सबसे पहले definition, as I've told you earlier also, scheduled banks are those banks which are listed in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934, and non-scheduled banks, they are not listed in the second schedule of the RBI Act 1934. Coming to parameters followed by them, CRR, cash reserve requirement. This is the percentage of net demand and time liabilities of a bank जो बैंक RBI के पास रखता है in the form of cash. So in case of scheduled banks, they have to follow the parameters under clause 42. That means उन्हें अपने total deposits का 4% कैश RBI के पास रखना है. In case of non-scheduled banks, ये clause 42 को तो follow नहीं करते हैं, but RBI द्वारा laid down guidelines को perfectly follow करना पड़ता है. Non-scheduled banks RBI द्वारा mentioned cash reserve requirement को अपने ही पास maintain करके रखते हैं. Coming to paid up capital or you can say reserve in these banks, scheduled banks का जो paid up capital है, it can never be less than rupees 5 lakh. वहीं non-scheduled banks का paid up capital is less than 5 lakh rupees. So this shows scheduled banks are quite huge, financially strong, but non-scheduled banks are not so financially strong. Coming to loans from RBI or you can say borrowings by these bank, scheduled banks ज़रूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक से कभी भी लोन ले सकते हैं at the bank rate और रेपो रेट। ये वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। इन केस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। इन्हें आरबीआई लोन देता है ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। प्लीज टेल मी एग्जैक्ट बैंक रेट, रेपो रेट एंड CRR इन द कॉमेंट बॉक्स। ये सब हम हमारे पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, सो आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू टू आंसर। कमिंग टू लेवल ऑफ रिस्क, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, शेड्यूल्ड बैंक्स का पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा होता है। ये 4% CRR RBI के पास मेंटेन करते हैं, कभी भी RBI से लोन ले सकते हैं। सो दैट मीन्स दे आर फाइनेंशियली स्टेबल और ये कभी भी अपने डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेंगे। इट इज़ सेफ टू डू बिजनेस विद देम। बट इन केस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल लिमिटेशंस, it is risky to do business with the non-scheduled banks. Next difference is rights enjoyed. There are certain rights जो सिर्फ scheduled banks enjoy करते हैं because of RBI, and they are refinancing, currency chest facility and becoming member of clearing house. Refinancing का मतलब होता है
रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लोन विद अ न्यू वन। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल बैंक्स ने मान लीजिए आरबीआई से कुछ लोन्स बोरो करके रखे हैं, बट नाउ दे वांट सम फ्रेश लोन्स फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई शेड्यूल बैंक्स को फ्रेश लोन्स ग्रांट करेगा एट न्यूअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन। सो दिस इज रीफाइनेंसिंग। जैसे बैंक्स के लोन्स की रीफाइनेंसिंग होती है, उसी प्रकार पर्सनल लोन्स की भी रीफाइनेंसिंग होती है। करेंसी चेस्ट फैसिलिटी, एज वी ऑल नो आरबीआई समय समय पर नए नोट्स प्रिंट करता है और ये नोट्स सीधे करेंसी चेस्ट में जाते हैं। तो आरबीआई की करेंसी चेस्ट इन शेड्यूल बैंक्स के पास भी होते हैं। जैसे ही आरबीआई के न्यू नोट्स प्रिंट होंगे, दे विल फर्स्ट गो टू करेंसी चेस्ट ऑफ दीज शेड्यूल बैंक्स। क्लियरिंग हाउस आर द प्लेसेस जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स, ट्रेजरी बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स सेटल होते हैं, क्लियर होते हैं बिटवीन द बोरोअर एंड द लेंडर। तो शेड्यूल बैंक्स इन क्लियरिंग हाउस के मेंबर बन सकते हैं। इनमें से कोई भी फैसिलिटी नॉन शेड्यूल बैंक्स के पास नहीं है। ना तो उनकी लोन्स रिफाइनेंस होंगे, ना उनको करेंसी चेस्ट की फैसिलिटी है, ना ही वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर बन सकते हैं। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। कमिंग टू कंक्लूजन, now if you want to open an account or if you want to do business, will you choose schedule bank or non-schedule bank? शेड्यूल बैंक्स आपको लो कॉस्ट सर्विसेज देते हैं बिकॉज इन्हें खुद आरबीआई से कम रेट पे लोन मिलता है। वो अपने डिपॉजिटर्स को हाई इंटरेस्ट देते हैं और शेड्यूल बैंक्स में कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय पर्क्स लाइक लो कॉस्ट सर्विसेज, हाई रिटर्न्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यू शुड ऑलवेज डील विथ शेड्यूल बैंक्स। बट कुछ कस्टमर्स होते हैं, उन्हें अपने कैश पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है और कुछ फीचर्स होते हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक्स के पास हैं और शेड्यूल बैंक्स के पास नहीं हैं। सो द कस्टमर्स हु वांट टू मेंटेन मोर कंट्रोल ओवर देयर मनी, नॉन शेड्यूल बैंक्स इज अ बेटर चॉइस फॉर देम। That was all about schedule versus non-schedule banks. Students, this is a very simple topic. स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल, किसी भी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपने एक भी बार इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना है, you will be able to answer all the questions related to this topic. Students, that is the end. I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।